चलो ठीक है, then we'll start with indices and surds. Basically, indices is a plural form of index. It's a plural form of index. Index is power. So something, let's say something is written something like a की power m, for example. This is what you call as an index, and this is what you call as a base. ठीक है, तो ये base है, ये index है. Now there are certain properties of index that we are expected to know, because questions will be framed from these properties. So some of the most fundamental and the basic properties that we have are these. Let us say we have a की power m into a की power n. So when the bases are equal, we can always add power, that is m plus n. That means if you have 2 की power 3 into 2 की power 4, for example, one way of doing it is you first solve this 8 and 32, then multiply, or in another words, you may want to do 2 की power 3 plus 2, even that is a 2 की power 3 plus 4, even that is a correct answer. You're getting it? So let's say if you have a की power m divided by a की power n, it is nothing but a की power m minus n. Let's say you have 2 की power 5 whole divided by 2 की power 3, you may want to say 2 की power 5 minus 3, which is the same thing, right? Then if you have a की power m whole की power n, this can be written as a की power m into n. Let's say I have 2 की power 3 whole की power 2, and it is in bracket. I may want to say this is 2 की power 3 into 2, which is 2 की power 6. However, this is different from saying a की power m की power n, right? These two are different. So how do you really solve this? For example, I have 2 की power 3 की power 2. I have 2 की power 3 की power 2. Now, if I put a bracket like this, right? If I put something like this, then I would say it is 2 की power 6, no problem. But if there is no bracket, for example, and I am having 2 की power 3 की power 2, so is it 8 की power 2 or 2 की power 9? ना तो नहीं चाहिए. अच्छा, इन्वर्टर वाले में नहीं है, होना तो चाहिए था. इन्वर्टर वाले को इसको लगा के, ठीक, तो हो जाएगा ना अपने आप ही, या करना पड़ेगा? Okay, so if you have, let's say, 2 की power 3 की power 2, so you start solving this from top bottom. That means first you solve this top 2, and then you come 2 की power 9. Now let us say we were to have 2 की power 3 की power 2 की power 4, for example, right? How would you solve? You would solve first 2, so you'll have 2 की power 3 की power 2 की power 4 is 16, and then you would solve this. So 2 की power 3 into 3 into 3, 16 times. You getting it? So that is the way that's how you approach this question. Ariba? So this is different from this bracket wala. ये एक property है, ठीक है? Then मैं ये कह रहा हूं, मान लो मेरे पास 2 की पावर 3 ऐसे ब्रैकेट है, मान लो, तो इसका मतलब तो मल्टीप्लाई हो गया. अगर लेकिन 2 की पावर 3 की पावर 4 है, इसका अलग मतलब होता है.
ना कोई नहीं, ऊपर चलाते हैं एक बार जनरेटर चला। मैं ये समझा रहा था कि जैसे ये तो है मल्टीप्लाई, इसका जो आंसर है ना वो तो होगा 2 की पावर 12, लेकिन इसका आंसर होगा 2 की पावर 81। जो ऊपर से शुरू होता है ना, ऊपर से ये से, वहां से अपने को सॉल्व करना होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। तो ये बनेगा 2 की पावर 81। ये कैसे होगा? 2 की पावर 12। ये फर्क क्या दोनों में? समझ में आ रहा है? यही समझा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर मेरा ए बी की पावर m है तो मैं इसको कह सकता हूं a की पावर m। अगर मैं a बाय b की पावर m करता हूं तो बनेगा a की पावर m बाय b की पावर m। समझ में आ रहा है? अगर ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज ऑलवेज टेकन एज 1। a टू द पावर ऑफ माइनस m कैन बी टेकन एज 1 बाय a की पावर m। ठीक है? nth root of a, indeterminate, nth root of a is a की पावर 1 by n। लेकिन अगर मैंने बोला nth root of a की पावर m तो ये बनेगा a की पावर m होल की पावर 1 by n। a की पावर m by n, मेरा a की पावर m by n। बोलो क्लियर है? ये इसका ये मैं डिराइव करा है, शॉर्टकट बताया। देखो a की पावर m को ऐसे लिखने दो। मान लो ये जो पीले वाला है ना, ये यूं का यूं है। जैसे ऊपर a की पावर, ये nth रूट था तो 1 by n आ गया, तो ये nth रूट है तो 1 by n हो जाएगा। लेकिन अब ये कैसा हो गया? ये वाला फॉर्मेट लग गया। देखो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल ये वाला, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी किताब में ऐसा नहीं लिखा होगा, किताब में ऐसा लिखा होता है nth रूट ऑफ a की पावर m इज रिटन एज a की पावर m बाय n। जैसे कि मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ लेट अस से 4 की पावर 5 मान लें, तो मैं इसको लिखूंगा 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, मतलब पावर में है, ये पावर में है। ये इंडाइसिस होता है। अगर अननोन क्वांटिटी पावर में आ जाती है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। To solve exponential equation, it is only possible if bases are equal, power can be equated. If powers are equal, bases can be equated. क्या मतलब है? For example, I say 2 की पावर 3x plus 4 is equal to 1024. ठीक है? 2 की पावर 3x plus 4 is equal to 1024. अब मुझे मान लो सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल पावर में है, we will call this equation as exponential equation. So how you solve this exponential equation? You solve this exponential equation by saying when the bases are equal, powers can be equated. When the bases are equal, power can be equated. So bases are equal, यानी 2 की पावर 3x plus 4 है, this has to be 2 की पावर 10. Let's say 1024 can be written as 2 की पावर 10. Now you see that these two bases, ये और ये सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि this is equal to this. In another words, I may want to say 3x plus 4 is equal to 10. So 3x is equal to 10 minus 4. So x is equal to 6 upon 3. The answer is. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो फिर हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर बेस डिफरेंट है तो समहाउ अगर ऊपर वाली इक्वल है, मान लेते हैं मैंने कहा 3x plus 4 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 5x की पावर 2। अब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं।
इसका मतलब है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x, और आप ये सॉल्व करोगे 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सर ऐसे करो, 2 की पावर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4x प्लस 5, cannot be solved unless we apply some logarithms or something like this. There is no way we can do this question. ठीक है, हाँ लॉग लगा के, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो जो पहले वाला हमने किया था वो क्या था, सर्ड्स, मतलब वो था सॉरी इंडाइसिस, ये क्या था, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। फिर हमारा आता है सर्ड्स। सर्ड्स किसको बोलते हैं, जिसपे ये टोपीधारी नंबर होते हैं ना, ये सारे सर्ड्स होते हैं। अगर कुछ लिखा होता है इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, अगर कुछ लिखा होता है क्यूब रूट, फोर्थ होता है तो फोर्थ रूट। समझ में आ रहा है? अब इसको हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/, इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, सर्ड्स बोलते हैं। अब चूंकि इस टाइप के नंबर्स जो हैं सिर्फ सर्ड है, तो हम इसको प्योर सर्ड के नाम से जानते हैं। मान लो मैंने लिखा 3√2, ये क्या है, मिक्स्ड सर्ड। ये क्या है मेरा, मिक्स्ड। क्या मिला हुआ है इसमें, सर्ड पार्ट मिला हुआ है और रैशनल पार्ट मिला हुआ है। तो अगर अपने को इसको प्योर सर्ड बनाना है तो हम कैसे करेंगे, √2 इंटू ये 3 जो है यहाँ पे अंदर आ जाएगा, 3 की पावर 2 बन जाएगा। क्यों बनेगा, बिकॉज यहाँ अंडर रूट है, तो ये प्योर सर्ड हो जाएगा √18। मान लेते हैं मेरे पास होता 3 इंटू √2 होता, तो इसको करने के लिए क्या करते, 2 इंटू 3 की पावर क्या करना पड़ता, 3, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, तो ये बन जाता √3। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ होता मान लो 3 इंटू 4√2, तो यहाँ क्या बन जाता, ध्यान रखना यहाँ क्यूब रूट है, तो बन जाता 4√2 इंटू 3 की पावर। आ रही समझ में बात? वैसे ही अगर हमें प्योर को मिक्स्ड बनाना है तो भी हमें यही काम फॉलो करना पड़ेगा। मान लेते हैं मेरे पास है √18 इंटू 49, मान लेते हैं अंडर रूट है, तो हमें इसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये 3² इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 7 की पावर 2 करना पड़ेगा। अंडर रूट है ना, चूंकि यहाँ 2 है तो चूंकि पावर 2 है तो बाहर हम यहाँ से 3 निकाल सकते हैं और यहाँ से 7 निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर क्या बचेगा, 2। तो मेरा आंसर बनेगा 21 √2। अगर यहाँ क्यूब होता तो कम से कम पावर 3 होनी चाहिए थी, तब हम वैल्यू बाहर निकाल सकते थे। समझ में आ रहा है? सो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट प्योर सर्ड इनटू मिक्स्ड सर्ड एंड मिक्स्ड सर्ड इनटू प्योर सर्ड। हाँ, मान लो ये अपने को सॉल्व करना है, मान लो अपने को सॉल्व करना है √18 इंटू, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या होना चाहिए, अब इसको फैक्टराइज करो। मान लो 18 को फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 9 बनेगा, 9 को अपन 3 इंटू 3 करेंगे, 49 को अपन 7 इंटू 7 करेंगे, इसका अंडर रूट यानी 2। इन दोनों में से क्योंकि 2 है, एक बाहर निकाल सकते हैं, साथ में कितने हैं, 2 हैं, तो एक साथ बाहर, अंदर इसका तो कुछ जोड़ीदार नहीं है, इसको यूं का यूं रहना पड़ेगा। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा 21। अब ये 2 का मतलब क्या है, मैंने पिछले वाले में क्या लिखा, 3 को, इसको 3² लिख दिया, इसको 7² लिख दिया। 2 मतलब ये स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो बाहर क्या आएगा, 3। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट है, तो बाहर क्या आएगा, 7। यहाँ 2 का 2 बचेगा। ये मिक्स्ड है, इसमें 21 भी और 2 भी मिक्स्ड है। अगर मैंने पूरा अंदर इसको सॉल्व कर देता, अंदर लिखते, ये मिक्स्ड फॉर्मेट है, मैं सॉरी प्योर फॉर्मेट है, ये प्योर है, ये मिक्स्ड। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये टोपी एक तरह की, ये क्या है, टोपी है। अगर नंबर टोपी के अंदर है पूरी तरीके से तो प्योर है, अगर कुछ टोपी के अंदर है कुछ टोपी के बाहर है तो मिक्स्ड है बस। अब असली में इसमें हमें ये समझ में आना चाहिए किस टाइप के सर्ड्स को अपन जोड़ सकते हैं, किस टाइप के सर्ड्स को घटा सकते हैं, किस टाइप के सर्ड्स को गुना कर सकते हैं, किस टाइप के सर्ड्स को डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
मान लेता हूं, मान लेते हैं 2√2 प्लस 3√2। इसको कुछ कर सकते हैं अपन? इसका कुछ नहीं कर सकते। मान लो ये होता तो भी कुछ कर सकते हैं इसका? ये 2 की √2 है, ये 3 है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेक्स, इसको बोलते हैं रेडिकैंड। ठीक है, और ये मेरा अपना रूट है, ये मेरा रूट का साइन है। अब अगर यहाँ पे इंडेक्स भी अलग अलग है और रेडिकैंड भी अलग अलग है तो ना जोड़ सकते ना घटा सकते। लेकिन चूंकि यहाँ पे रेडिकैंड सेम है, रेडिकैंड सेम है, तो अपन इसको √2 इंटू √3 इसको मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बनेगा 2 की पावर 1/2, ये बनेगा 2 की पावर 1/3। सॉल्व करेंगे बनेगा 2 की पावर 5/6। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6√2 की पावर 5। प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या सेम है इसका? रेडिकैंड, अंदर वाली वैल्यू सेम है, इसलिए अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड, ये 2 की पावर हाफ बनेगा, डिवाइड बाय 2 की पावर 1/3 बनेगा, ये 2 की पावर 1/2 माइनस 1/3 बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 1/6। अभी सॉल्व किया था हमने इसको। क्लियर है? तो रेडिकैंड अगर सेम है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं मेरा इंडेक्स सेम है, रेडिकैंड अलग अलग है। मान लेते हैं मैंने कहा √2 इंटू √5। अब क्या रेडिकैंड अलग है, इंडेक्स सेम है, तो मान लेते हैं मैंने प्लस लिखा 1 मिनट के लिए। क्या मैं इनको जोड़ सकता हूं? ना, कुछ भी नहीं बनेगा। क्या मैं इसको घटा सकता हूं? कुछ भी नहीं बनेगा। क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं? कर सकता हूं। ये √2 इंटू √5, चूंकि इनका जो छत है वो सेम है, एक ही घर में रहते हैं, तो √2 इंटू 5 यानी √10। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या डिवाइड हो सकता है? √2 डिवाइडेड बाय √5 बिल्कुल हो सकता है। ये बनेगा √2/5 यानी कि √0.4, जो भी बनेगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? यानी कि या तो इंडेक्स सेम हो या रेडिकैंड सेम हो तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा थर्ड पार्ट सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा थर्ड पार्ट सेम होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 3√2 प्लस 5√2 माइनस 8√2, मान लेते हैं ये। अब यहां पे देखो ये सेम है, पूरा सेम का मतलब है इंडेक्स भी सेम है और रेडिकैंड भी सेम। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि ये क्या बनेगा? √2 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 + 5 - 8 यही बनेगा। मेकिंग सेंस? ठीक है, तो मतलब अगर दोनों पार्ट सेम होता है, बोलिए समझ में आ रहा है? सर्ड। इसके बाद होता है डिवीजन ऑफ सर्ड। डिवीजन ऑफ सर्ड, तो डिवीजन जो होता है उसको रैशनलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। जैसे कि मान लो मेरे पास 2 + √3 होल डिवाइडेड बाय √5 + √3 है, तो सर्ड को रैशनलाइज करने का मतलब है डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड का क्या मतलब है? डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए?
रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनलाइजेशन का मतलब डिनोमिनेटर में होना चाहिए रैशनल नंबर। तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट यू नोन एज कॉन्जुगेट। हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉन्जुगेट से, जो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था। कॉन्जुगेट प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? यहां अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर को ही देखना होता है। तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा मेरा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बनेगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर जो भी है सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 माइनस 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, न्यूमरेटर में जो भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। समझ में आ रही बात यहां तक? हाँ जी काजल बोलो, तुम्हें ऑनलाइन समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है, ओके, शुड नॉट बी प्रॉब्लम। रैशनलाइजेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, 2 प्लस √3 इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 2 माइनस √3। और 2 माइनस √3 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 2 प्लस √3। अच्छा, √3 प्लस 2 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? यही बनेगा, क्योंकि पहले हमें, अच्छा इसका क्या बनेगा? √3 माइनस 2 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? इसका बनेगा -2 माइनस। समझ में आ रहा है क्या मतलब है? जब भी हमें ऐसे दिए जाता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रियल नंबर लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? रियल नंबर। फिर लिखते हैं रैशनल नंबर। उसके बीच का साइन बदलना है। ये नहीं कि भाई जो भी दिया हुआ है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, अब आप ये नहीं कह सकते जी ये दिया हुआ है तो मैं इसको √3 प्लस 2 कर दूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है। हरी बात समझ में? ये ध्यान रखने वाली बात है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, पहले ये समझते हैं कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं मैंने कहा √3 माइनस 2 कॉन्जुगेट निकालना है। तो मैंने कॉन्जुगेट, सब लोग यही बताते हैं ना, बीच में साइन बदलना होता है। लेकिन बीच में साइन बदलने का लॉजिक होता है, नियम होता है। नियम ये होता है, पहले जो भी दिया हुआ है इसको ऑर्डर में लिखो। ऑर्डर का मतलब होता है पहले रैशनल नंबर फिर इरेशनल नंबर। तो इसमें 2 रैशनल नंबर है, इसको कैसे लिखोगे? -2 प्लस √3, इसी नंबर को लिखा है। अब इसका, ये दोनों है तो सेम ही चीज ना। अब साइन चेंज करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। मान लो इसका क्या निकालना है मेरे को? कॉन्जुगेट निकालना है। तो बनेगा -2 माइनस √3। ये सही है। अगर आपने ये कर दिया √3 प्लस 2 कॉन्जुगेट के लिए, तो ये गलत है। मतलब साइन बीच में बदलना है देखो, लेकिन इसके बीच में बदलोगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे इरेशनल नंबर है फिर रैशनल नंबर है। अपने को जो भी सर्ट दिया जाता है डिनोमिनेटर में, उसको पहले हम ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब ये है पहले रैशनल नंबर फिर इरेशनल नंबर। नीचे इसको फोन कर दो, ना देता हूँ। क्या हुआ? बैठ जाए, कोई नहीं, ले आएंगे वो। अरे ले आएंगे वो लोग, अपने आप कर लेंगे। तुम्हें पीना है क्या? बस फिर क्या दिक्कत है, तुम क्यों जल्दी गए? इसको रैशनलाइज करने के लिए नीचे कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों ही रैशनल है, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ा नहीं है मैंने, लिखा नहीं है आलस के चक्कर में। लो करना तो पड़ेगा। 2 इंटू √5, 2 √5, 2 इंटू -√3, 2 -√3, √3 इंटू √5, √3 -3, -3। ये न्यूमरेटर में आएगा। अब हम इसका कुछ कर नहीं सकते, यूं का यूं लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। बट रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर हो। रैशनलाइजेशन का मतलब है डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर हो।
ओके, रैशनलाइजेशन समझ में आ रहा है? कंपैरिजन मतलब, हाँ अभी करें, करना है। इसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ सर्ड। मान लो मैंने कहा √2, √3, √5, नहीं, मान लो √2, क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 4 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 5। या इसके पहले एक और क्वेश्चन, √2, √3, √4, √5, सबसे बड़ा कौन सा है? अच्छा, √4 कितना होता है? तो 2 बड़ा है, √2 बड़ा है? फिर क्या बात कर रहा है यार, जिसकी भाई सबकी टोपी का रंग सेम है, तो जो नंबर बड़ा होगा अंदर वही बड़ा हो जाएगा, काम मामला खत्म हो गया। भाई इंडेक्स सेम है तो रेडिकेंड कंपेयर हो जाएगा अपना, हो गया कंपेयर, तो आ जाएगा आंसर। अब अगर अपना रेडिकेंड सेम है, मान ले मैंने कहा √2, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, कौन सा बड़ा है? अब क्यूब रूट है ये, सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये, क्योंकि ये बनेगा 2 की पावर हाफ, ये बनेगा 2 की पावर 1/3, ये बनेगा, अच्छा अच्छा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। एक सेकंड, मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ। √2, क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 2, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, यानी क्योंकि ये 2 की पावर 1/2 है, ये 2 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/4 है, 2 की पावर 1/5। इसका क्या मतलब है? अगर इंडेक्स सेम है तो रेडिकेंड देख लेंगे, और अगर रेडिकेंड सेम है तो इंडेक्स देख लेंगे, यही बात है, इसमें तो लॉजिकल बात है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों अलग हो। समझ में आ रही बात? तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो अपने को ये चेक करना है, ठीक, मान लो मुझे चेक करना है √2 बड़ा है या क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा है। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 की पावर 1/2, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/3, ठीक है। अब मैं क्या अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा क्यों। इन 2 और 3 का क्या होता है, एलसीएम क्या होता है? 6। 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 चाहिए, तो नीचे 3 करूंगा तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए अगर ऊपर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बनेगा 2 की पावर 3/6, ये बनेगा 3 की पावर 2/6, चलेगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 1/6, और ये बनेगा 3 की पावर 2 की पावर 1/6, चलेगा। इसको मैं लिख सकता हूं 6th रूट ऑफ 2 की पावर 3, इसको लिख सकता हूं 6th रूट ऑफ 3 की पावर 2। समझ में आ रहा है? ये बनेगा 6th रूट ऑफ 8 और ये बनेगा 6th रूट ऑफ 9, कौन सा बड़ा है? 9 वाला है 8 वाला? क्यूब रूट, ये तो 6th रूट तो सेम हो गया, तो जो रेडी 9 बड़ा है यानी ये बड़ा है। अरे बात समझ में? अब इतनी मेहनत नहीं करनी एग्जाम में, ये समझाने के लिए प्रोसेस क्या है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, लॉजिक है। हाउ आर यू गोइंग टू डू इट इन एग्जाम, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 लिखा है, मान लो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। 6 बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? इंटू, जहां जो इंटू करोगे यहाँ पे पावर में डाल देना। यहाँ पे क्या इंटू करना है, तो इसकी पावर में क्या आएगा? 2, ये आ गया 6th रूट ऑफ 8 और 6th रूट ऑफ 9, आंसर आ गया, यहीं पे बता चुके, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट। आ रही बात समझ में? इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। हाँ, ये शॉर्टकट वाला।
ये तो समझ में आया प्रोसेस पूरा। अब मुझे चाहिए अंडर रूट ऑफ 2 बड़ा है या क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा है, हमें ये चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लो 2 लिखता हूँ, कुछ नहीं होता तो 2 होता है, पता है ना, स्क्वायर रूट मतलब ये। अब 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6। मुझे 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी पावर भी 3 कर देना। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी पावर भी 2 कर देना। बस ये बनेगा 6th रूट ऑफ 8 और ये बनेगा 6th रूट ऑफ 9। बन रही है बात यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद आता है हमारा रूट ऑफ ए सर्ट। अंडर रूट ऑफ ए सर्ट का मतलब है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास ये है 12 प्लस 6 रूट 3, ये मेरा एक सर्ट है। हमें इसका अंडर रूट निकालना है, समझ में आ रहा है, हमें क्या निकालना है, अंडर रूट। अब किसी भी सर्ट का अंडर रूट निकालने का मतलब ये है कि मुझे अगर इसको खत्म करना है तो अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर अंदर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाए और मुझे इसका अंडर रूट निकालना हो तो मैं इसको कर सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा a प्लस बी। आ रही बात समझ में? Whenever we are given something like this, I have to convert this data into a square plus b square plus 2ab का format. Now, how do we do it? Now you see, चूंकि इसमें एक के अंदर रूट है, चूंकि इसके अंदर रूट है तो ये बात तो श्योर है ये स्क्वायर वाला पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि अंदर स्क्वायर है, रूट है, तो ये स्क्वायर वाला पोर्शन तो नहीं हो। तो ये वाला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस वाले को, और ये वाला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इन दोनों को। टेक्निकली आई कैन से a square plus b square is equal to 12 and 2ab is equal to 6 root 3, or you may want to say ab is equal to 3 root 3. Now we are having two equations, a square plus b square is equal to 12 and ab is equal to 3 into root 3. Now technically speaking, it is two variable two equations. It is two variable two equation. You can substitute one of the variable in another and put here. But when you put there, you will get a biquadratic equation. That is a 4th degree equation in B. For example, if I were to say A is equal to 3 root 3 upon B, right? I can say like this. Now, if I substitute this value here, what do you get? You get 9 into 3 upon B square plus B square is equal to 12. So it becomes 27 B square plus B square is equal to 12. You want to simplify this, it becomes 27 plus b की power 4 is equal to 12b square, or you have b की power 4 minus 12b square minus 27 is equal to 0. Now it is a biquadratic. You may want to take b square as p. So your equation becomes p square minus 12p minus 27 is equal to 0. Now it is a quadratic equation. You will try to get two values for b. But the negative value will be discarded because p की value क्या है, b square. B square cannot be negative. समझ में आ रही बात क्या कह रहा है? ये रहा, b की पावर 4 है, माइनस 12 है, अच्छा ये प्लस है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 9 3 जा तो माइनस 9p minus 3p, minus 9p minus 3p plus 27 is equal to 0. p into p minus 9 minus 3 into p is equal to 3. Now if you take p is equal to 3, so b square is equal to 3 and b square is equal to 9. So b may be under root of 3 or b may be
अब ये दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए में, ए की वैल्यू बनेगी, अगर हमने √3 माना है तो 3√3 अपॉन √3, तो ये कट जाएगा, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। दूसरा तरीका ये है कि हमने इसको 3 मान लिया, तो 3√3 अपॉन 3, तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू √3 आ गई। समझ में आ रहा है? यानी ए की वैल्यू √3 है तो बी की वैल्यू 3 है, ऐसा हमने लिया, या ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू √3, ऐसा निकल के आ रहा है। आ रही बात समझ में? अभी वहीं आ रहे हैं, उससे 2 लेवल ऑफ शॉर्टकट है। एक तो ये मेथड है प्रॉपर जुगाड़, जो ऐसे मतलब मान लो आ गया और ये वो करना पड़ा, तो ये तरीका है। Obviously this is a very long process, and what we can do is we can do slightly better than this. Now we have this, what do you have? You have under root of 12 plus 3. Now we know a into b is 3√3 and a square plus b square is equal to 12. Now you may want to break it. a को मान लो 3 मान लेते हैं, b को मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, बन सकता है ना a into b। अब इसको ट्रायल करो, a का स्क्वायर कितना बनेगा 9, b का स्क्वायर कितना बनेगा 3, आ गया आंसर, हो गया आंसर। यही तो करना था, ये तो जल्दी मिल गया। अगर जल्दी नहीं मिलता तो एक दो और अटेम्प्ट करने पड़ते, और क्या होता भाई। समथिंग इनटू समथिंग दिया हुआ है, स्प्लिट कर करके देख लो कौन सा आंसर है, कैसे पता चलेगा? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर आना चाहिए। आगे बात समझ में? अब इसको कैसे करेंगे? 12 को अपन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे? प्लस 2 इंटू 3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका अंडर रूट निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है, तो ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा। मेरा आंसर आएगा 3 प्लस √3, ये आंसर है। अब इससे भी आसान ऑप्शन में दिया होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आना चाहिए, अंदर वाला काम खत्म हो गया। 4 का स्क्वायर करना है, जो स्क्वायर करके अंदर वाला वैल्यू आ जाएगा। ये तो तब है अगर ऑप्शन नहीं दिया गया तो सारे सिस्टम्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन का जो स्क्वायर होगा वही तो आएगा अंडर रूट की वैल्यू। बस इतना ही करना है आपने। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? Okay, and there are 4-5 examples. I want you to quickly just go through it. Then we'll start with logarithms in next 10 minutes. ठीक है काजल, एक बार देख लो बुक्स अपना, फटाफट एग्जांपल्स करो, फिर अपन लॉग शुरू करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से लिंक भेजता हूं ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए लॉग की नई सिरे से। ठीक है, ज्वाइन कर लेना फिर से। ठीक है, हाँ क्वेश्चन कर, मैं नए वो भेजता हूँ।